بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت غافر ہم حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست سب کچھ جانے والا ہے، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے فضل والا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، پس ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا اور ان کے بعد بہت سے گروہوں نے بھی۔ ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کی کوشش کی اور باطل کے ذریعے جھگڑا کیا تاکہ حق کو شکست دے دیں، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ اور اسی طرح کافروں کے بارے میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی کہ وہ جہنم والے ہیں۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، پس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادا، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں انہیں بھی۔ بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور انہیں برائیوں سے محفوظ رکھ، اور جسے تو اس دن برائیوں سے بچا لے گا، یقیناً تو نے اس پر رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں پکار کر کہا جائے گا، اللہ کی ناراضی تم پر اس ناراضی سے بھی زیادہ ہے جو تم اپنے آپ سے رکھتے تھے، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ پس فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو بلند و بزرگ ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور نصیحت صرف وہی حاصل کرتا ہے جو رجوع کرتا ہے۔ پس اللہ کو پکارو اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، خواہ کافروں کو ناگوار ہی ہو۔ وہ بلند درجات والا عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی نازل کرتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے، جس دن وہ سب لوگ ظاہر ہو جائیں گے، ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی نہ ہوگی۔ آج بادشاہی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی جو ایک ہے، سب پر غالب ہے۔ آج ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور انہیں اس قریب آنے والے دن سے خبردار کریں جب دل غم سے حلق تک پہنچے ہوں گے اور وہ خاموش ہوں گے۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے راز جانتا ہے، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، جبکہ جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ ہی خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ طاقت اور زمین میں آثار کے لحاظ سے ان سے زیادہ مضبوط تھے، پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے تھے، پھر انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک وہ طاقتور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ جادوگر اور جھوٹا ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کر دو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ اور کافروں کی تدبیر صرف گمراہی میں تھی۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکارے، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا، آمک میں فساد برپا کر دے گا۔ اور موسیٰ نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور فرعون کے خاندان میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا کہنے لگا کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں بھی لے کر آیا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تمہیں ضرور پہنچے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہی ہے، تم زمین میں غالب ہو، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی بات دکھاتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں، اور میں تمہیں صرف بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اور وہ ایمان والا شخص کہنے لگا اے میری قوم، مجھے تم پر پچھلی قوموں جیسے دن کا خوف ہے، جیسے قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد آنے والی قوموں کا حال ہوا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم، مجھے تم پر پکارنے والے دن کا خوف ہے، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے
पास वाज़े निशानियां लेकर आए थे, फिर तुम उनकी लाई हुई बात के बारे में शक ही में रहे, यहां तक कि जब वो वफात पा गए तो तुमने कहा अल्लाह उनके बाद कभी कोई रसूल नहीं भेजेगा। इसी तरह अल्लाह हर इस शख्स को गुमराह करता है जो हद से बढ़ने वाला, शक करने वाला हो। जो लोग अल्लाह की आयत में बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो झगड़ते हैं, ये बात अल्लाह के नज़दीक और ईमान वालों के नज़दीक बहुत बड़ी नाराज़ी का बाइस है। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर और सरकश के दिल पर महर लगा देता है। और फिरौन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत बना, शायद मैं रास्तों तक पहुंच जाऊं, आसमानों के रास्तों तक, फिर मूसा के माबूद को देख लूं, और बेशक मैं इसे झूठा समझता हूं। और इसी तरह फिरौन के लिए इसका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया और इसे रास्ते से रोक दिया गया, और फिरौन की तदबीर सिर्फ तबाही में थी। और वो ईमान वाला शख्स कहने लगा, ए मेरी कौम, मेरी पैरवी करो, मैं तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करूंगा। ए मेरी कौम, ये दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ थोड़ा सा फायदा है और आखिरत ही हमेशा रहने का घर है। जो शख्स बुराई करेगा इसे इसी के बराबर बदला दिया जाएगा, और जो मर्द औरत ईमान के साथ नेक अमल करेगा, ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे, वहां उन्हें बेहिसाब रिस्क दिया जाएगा। और ए मेरी कौम, मुझे क्या हुआ है कि मैं तुम्हें नजात की तरफ बुलाता हूं और तुम मुझे आग की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे दावत देते हो कि मैं अल्लाह का इनकार करूं और उसके साथ ऐसी चीज को शरीक ठहरा है जिसका मुझे कोई इल्म नहीं, जबकि मैं तुम्हें जबरदस्त बहुत बख्शने वाले की तरफ बुलाता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि तुम मुझे जिसकी तरफ बुलाते हो ना दुनिया में पुकारने के लायक है और ना आखिरत में, और हमारा लूटना अल्लाह ही की तरफ है, और हद से गुजरने वाले ही आग वाले हैं। अनकरीब तुम्हें याद आएगा जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। बेशक अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। बस अल्लाह ने इसे उनकी बुरी तदबीरों से बचा लिया, और फिरौन वालों को बुरे अजाब ने घेर लिया। आग है जिसके सामने वो सुबह और शाम पेश किए जाते हैं, और जिस दिन क़यामत कायम होगी कहा जाएगा, फिरौन वालों को सबसे सख्त अजाब में दाखिल करो। और जब वो जहन्नम में एक दूसरे से झगड़ेंगे तो कमजोर लोग उन लोगों से कहेंगे जो तकब्बुर करते थे, हम तुम्हारे पैरकार थे, तो क्या तुम आग के कुछ हिस्से से हमें बचा सकते हो? वो तकब्बुर करने वाले कहेंगे, हम सब इसी में हैं, बेशक अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है। और जो लोग आग में होंगे वो जहन्नम के निगहबानों से कहेंगे, अपने रब से दुआ करो कि वो हमारे लिए एक दिन का अजाब ही कम कर दे। वो कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाज़े निशानियां लेकर नहीं आए थे? वो कहेंगे, क्यों नहीं? वो कहेंगे, फिर तुम खुद दुआ करो, और काफिरों की दुआ सिर्फ बेफायदा है। बेशक हम अपने रसूलों और ईमान वालों की दुनिया की जिंदगी में भी मदद करते हैं, और इस दिन भी जब गवाह खड़े होंगे, जिस दिन जालिमों को उनका उज़्र कोई फायदा नहीं देगा, और उनके लिए लानत होगी और उनके लिए बुरा ठिकाना होगा। और यकीनन हमने मूसा को हिदायत अता की और बनी इसराइल को किताब का वारिस बनाया, जो अक्ल वालों के लिए हिदायत और नसीहत थी। बस सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वदा सच्चा है, और अपने गुनाह की बख्शिश मानिए, और सुबह और शाम अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए। बेशक जो लोग अल्लाह की आयत में बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो झगड़ते हैं, उनके सीनों में सिर्फ तकब्बुर है जिस तक वो पहुंचने वाले नहीं। बस अल्लाह की पनाह मांगिए, बेशक वो खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। यकीनन आसमानों और जमीन की पैदाइश इंसानों की पैदाइश से कहीं बड़ी है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और नाबीना और देखने वाला बराबर नहीं, और ना ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वाले और बदकार बराबर हैं। तुम बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। बेशक क़यामत आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं वो अनकरीब जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसमें आराम करो, और दिन को रोशन बनाया। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़े फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, हर चीज का पैदा करने वाला है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहाँ बाकाए जाते हो? इसी तरह वो लोग बाकाए जाते थे जो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ठहरने की जगह और आसमान को इमारत बनाया, और तुम्हें सूरत दी, फिर तुम्हारी सूरतें अच्छी बनाई, और तुम्हें पाकीज़ा चीजों का रिज्क दिया। यही अल्लाह तुम्हारा रब है, बस बहुत बाबरकत है अल्लाह जो तमाम जहानों का रब है। वही जिंदा है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस इसी को पुकारो, इसी के लिए दीन को खालिस करते हुए। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। कह दीजिए, मुझे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, जब मेरे पास मेरे रब की तरफ से वाज़े निशानियां आ चुकी हैं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तमाम जहानों के रब के सामने सर्न तस्लीम खम करूं। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर इलकी से, फिर तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालता है, फिर तुम्हें बालिग होने तक पहुंचाता है, फिर बूढ़े होने तक, और तुम में से कुछ इससे पहले वफात पा जाते हैं, और ताका तुम मुकर्ररा मुद्दत तक पहुंचो और शायद तुम अक्ल से काम लो। वही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, फिर जब वो किसी काम का फैसला करता है तो बस इसे कहता है हो जा, तो वो हो जाता है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयत में झगड़ते हैं? वो कहाँ फेरे जाते हैं?
जिन्होंने किताब को और इस चीज को झुटलाया जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजी, पस अनकरीब वो जान लेंगे जब तक उनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें होंगी, उन्हें घसीटा जाएगा खोलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा, कहाँ हैं वो जिन्हें तुम शरीक ठहराते थे अल्लाह के सवा? वो कहेंगे, वो हमसे गुम हो गए, बल्कि हम इससे पहले किसी चीज को नहीं पुकारते थे। इसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह करता है। ये इस वजह से है कि तुम जमीन में नाहक खुशियां मनाते और अकड़ते थे। जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, इसमें हमेशा रहो। बस तकब्बुर करने वालों का ठिकाना बहुत बुरा है। बस सब्र कीजिए, बेशक अल्लाह का वदा सच्चा है। फिर अगर हम आपको इस अजाब का कुछ हिस्सा दुखा दें जिसका हम उनसे वदा करते हैं, या आपको वफात दे दें, बहरहाल उन्हें हमारी तरफ ही लूटना है। और यकीनन हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे, इनमें से कुछ के हालात हमने आपको बयान किए हैं और कुछ के हालात आपको बयान नहीं किए। और किसी रसूल के लिए यह मुमकिन ना था कि वो अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई निशानी ले आता। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा तो हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा, और इस वक्त बातिल वाले खसारे में होंगे। अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए ताकि तुम उनमें से बाज पर सवार हो और बाज को खाओ, और उनमें तुम्हारे लिए और भी बहुत से फायदे हैं, और ताकि तुम उनके जरिए अपने दिलों की जरूरतों तक पहुंचो, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार किए जाते हो। और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है, बस तुम अल्लाह की कौन कौन सी निशानियों का इनकार करोगे? क्या उन्होंने जमीन में सफर नहीं किया कि देखते इन लोगों का अंजाम कैसा हुआ जो उनसे पहले थे? वो तादाद में उनसे ज्यादा थे, ताकत में भी ज्यादा, और जमीन में आसार के लिहाज से भी ज्यादा मजबूत थे, मगर जो कुछ वो कमाते रहे वो उनके काम ना आया। फिर जब उनके रसूल उनके पास वाज़े निशानियां लेकर आए तो वो अपने इस इल्म पर इतराने लगे जो उनके पास था, और जिस चीज का वो मजाक उड़ाते थे इसी ने उन्हें घेर लिया। फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे, हम अल्लाह पर ईमान लाए और उन सब चीजों का इनकार किया जिन्हें हम उसके साथ शरीक ठहराते थे। लेकिन जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो उनका ईमान उन्हें फायदा ना दे सका। ये अल्लाह का वो तरीका है जो उसके बुंदों में पहले से जारी रहा है, और वहां काफिर खसारे में रह गए।